Welcome all of you once again. We are into 7 habits. So we are on the habit 5 today. Today we are going to cover a new beautiful habit, which is seek first to understand and then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. The name is quite a mouthful, but it's quite easy to understand. So it's more of towards understanding. So as we covered the earlier habits, some of them touched upon leadership, some of them touched upon management, some of them touched upon interpersonal relationships. And today, this habit will touch upon emphatic communication. Habit 5 is seek first to understand, then to be understood. Then we will talk about emphatic listening, what it is. Then we talk about diagnose before prescribe, 4 autobiographic responses that people give. Then seek to be understood. What does it mean for you being to be able for others to understand you? And then how to apply. We'll talk about a little exercises, some of the things that you can take home with this session. And if you want to become a better, effective individual, you can work on these exercises. Okay. So let's start with this beautiful slide here. Principles of emphatic communication. कम्युनिकेशन तो पता है हम लोगों को, तो लोग बात करते हैं, टीम बात करती है, सेशन होते हैं, सेशन सुनते हैं आप, पढ़ते हैं. एम्फेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? ओके, सो लेट्स सी. आई जस्ट रीड द पॉइंट्स हियर. वी हैव अ टेंडेंसी टू रश इन टू फिक्स थिंग्स अप विद गुड एडवाइस. Often we fail to diagnose to understand the problem first. तो ये देखो, ये बहुत बड़ी हमारे कम्युनिकेशंस की ये प्रॉब्लम है. हम सब लोगों को ये फेस करना पड़ता है और हम सब लोग ये करते भी हैं. लाइक वी आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस प्रॉब्लम, और यू कैन कॉल इट डिजीज इन अ वे. हम लोग सुनने से पहले एडवाइस देते हैं. कोई प्रॉब्लम बताता भी नहीं है आधा, और आप जज कर लेते हैं. आवर माइंड इनसाइड इज वेरी क्विक टू जंप कंक्लूजन्स एंड स्टार्ट गिविंग एडवाइस. ओके, एंड देन वी फेल टू डायग्नोस. हम समझ ही नहीं पाते. वी डोंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहाँ पे है. वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट विद द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. We don't give it a chance. We will just move on in a second to a doctor's spectacle example, which will make this topic drive home. Habit 5 is the key to effective interpersonal communication. Right? So last time we saw that habit 4 was the effective interpersonal relationships. Habit 5 is the key to effective interpersonal communication. In the fifth step, अब relationships के बाद आपको communication की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोगों से बात करेंगे, डील करेंगे, you will need to learn the power of empathic communication, the power of listening. Okay, let's see this beautiful, great example. It's a joke, plus it's a nice, you can call it a story, it's a pictorial story, which will drive the point really home. तो एक पेशेंट है जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता है. शी नीड्स ग्लासेस. देन द ऑप्टोमेट्रिस्ट और द डॉक्टर गिव्स हर. तो वो चेकिंग करते हैं, ही एनालाइजेस हर आईज, एंड देन वो अपना चश्मा उसको उतार के दे देते हैं टू ट्राई इट आउट. एंड देन शी वेयर्स द डॉक्टर्स ग्लासेस, and it makes it worse for the patient because doctor's glasses may be different and the patient's number may be different, right? But the doctor is very adamant. Doctor is saying you are being ungrateful because I know the glasses work perfectly. तो डॉक्टर के लिए वो ग्लास ठीक है, क्योंकि डॉक्टर उस आइस से देख रहा है, राइट? उसकी आइस का जो नंबर है, उसके आइस का जो स्पेसिफिकेशंस है, उसके हिसाब से उसका ग्लासेस है. बट वो उसका ही ग्लास उतार के उसके पेशेंट को वो पुश कर रहा है कि आप, ये सही है ग्लास, मुझे पता है, और आप यही पहनो और इसी से आपको देखना है और इसी से दिखेगा. नाउ व्हाट इज दिस? यू विल कॉल दैट डॉक्टर अ फूल, इजंट इट? ये आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कोई करता है क्या डॉक्टर? तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसको समझो जरा. डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर रहा है, पहले डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर रहा है. क्या हो रहा है इसमें प्रॉब्लम है? इसी तरह का हमारा कम्युनिकेशन है पूरे लाइफ में. ये लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, आप देखते हैं कुछ तो एक एंगल से, एंड बिफोर दे इवन कंप्लीट देयर प्रॉब्लम और इवन यू हैव अ बिगर चांस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, यू जस्ट गिव द आंसर. आप तुरंत एडवाइस दे देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं, एंड आप कुछ बता देते हैं उसको जो मे नॉट वर्क फॉर हर, मे नॉट वर्क फॉर हिम, मोस्ट डेफिनेटली बिकॉज आपने डायग्नोज ही नहीं किया. लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल कोट हियर. द हार्ट हैज इट्स रीजंस which reason knows not of. The heart has its own reasons which reason means यहाँ ब्रेन को इंडिकेट किया जा रहा है, लॉजिक को इंडिकेट किया जा रहा है. कुछ चीजें ऐसे आप निर्णय लेते हैं जो फास्ट होता है, फीलिंग से आता है, और जिसको रीजन ना ऑब्जेक्ट कर पाता है, ना कोई रीजन दे पाता है ब्रेन उसके लिए, ना कोई जस्टिफाई कर पाता है. नाउ वी गेट इनटू द हैबिट. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. तो देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर और स्पेक्टिकल एग्जांपल से हमने क्या समझा कि हम सुनते ही नहीं है पहले. हम बोलना शुरू कर देते हैं, एडवाइस देना शुरू कर देते हैं. So we are very poor listeners, especially with the growing time and with the growing generation. We are becoming more poor and poor listeners every day because there is so much information everyone wants to share. हम अगर गुस्से में हैं या हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, what is your expectation? Your expectation is कि सामने वाले को मुझे समझना चाहिए. तो ये बहुत
गहरे से टच करती है हैबिट। इसको इसको अच्छे से समझो। हर कम्युनिकेशन में, हर डील में, हर इंटरव्यू में, हर मीटिंग में हमारी यही इंटरेस्ट होती है, हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि पीपल शुड लिसन टू मी फर्स्ट। स्पेशली सीनियर्स, लीडर्स, मैनेजर्स, जो बॉसेस होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है। यू वांट टू बिल्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन यू विल बी बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ टाइम रिलेशनशिप। ओके, अभी इसको समझते हैं। देखो कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है, अंडरस्टूड का क्या मतलब होता है। चार टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। ओके, हमें तो एक ही टाइप का पता है राइट। अभी इंस्टाग्राम भी पता है हमें, हमें रीडिंग भी पता है। तो देखो, फोर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर रीडिंग। पहली लाइन यहाँ पे है, मैं पढ़ रहा हूँ। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। These are four essential types of ways or mediums or dimensions in which or through which we communicate with other people. तो हम पढ़ते हैं कुछ। रीडिंग मतलब सिर्फ बुक्स नहीं हो गया, रीडिंग मतलब आर्टिकल्स, रीडिंग कुड बी एनीथिंग, राइट। रीडिंग कुड बी बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वेब पेजेस, सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, ब्लॉग पेजेस, वाइट पेजेस, आप कुछ भी पढ़ते हैं, राइट, मैगजीन्स पढ़ते हैं, दैट इज ऑल रीडिंग। व्हाट डू यू डू? यू गेन इन्फॉर्मेशन। तो रीडिंग इज वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड लर्निंग। सेकंड वे इज राइटिंग। तो कोई बोलेगा राइटिंग से कैसे कम्युनिकेट होता है? राइटिंग से कम्युनिकेट होता है, हम सबको पता है। वी राइट ईमेल्स, वी राइट लेटर्स, वी राइट आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट। तो ये दूसरा साइड है उसका। रीडिंग का अपोजिट साइड है राइटिंग। राइटिंग से आप खुद से भी बात कर, तो रीडिंग, राइटिंग। देन स्पीकिंग, ये तो हमें पता है, हमें स्पीकिंग का सिर्फ पता है। स्पीकिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड ऑल्सो लिसनिंग। तो ये फोर्थ सबसे पुअर जिसको हम ध्यान देते हैं ना, दैट इज लिसनिंग। सो लेट मी रीड द सेकंड पॉइंट हियर। वेरी फ्यू पीपल हैव हैड एनी ट्रेनिंग इन लिसनिंग। तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस। लिसनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल टू बिकम सक्सेसफुल। Okay, now let me read the third point. Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. ये अपने बात की थी अभी कि आप लोग जब आपको सुन रहे हैं या आप लोगों को सुन रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन सुनने का होता ही नहीं है। हम तो मन में सोच रहे होते हैं कि ये खत्म करे तो मैं क्या बोलूं। हम राह ही देख रहे होते हैं कि ये कहीं जरा सा पॉज ले और मैं चढ़ जाऊं पूरा ऊपर से, मैं बोलने लगूं। होता है यू आर हार्डली पेइंग अटेंशन, लेस पेइंग अटेंशन टू लिसनिंग and more paying attention to what you want to reply. Then fourth point, people are either speaking or preparing to speak. बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, लिसनिंग तो आया ही नहीं इसमें कहीं। तो लोग या तो बोल रहे हैं या बोलने की तैयारी कर रहे हैं पूरा दिन। तो देखो कैसी बात हो गई है। कोई बोलेगा कि देखो, दो पार्ट होने चाहिए ना, कि इधर यू आर टॉकिंग और यू आर लिसनिंग, ऐसा होना चाहिए ना। तो जब आप नहीं बोल रहे हैं ना, जब आपको लग रहा है आप सुन रहे हैं, तब आप एक्चुअली सोच रहे हैं। आपके अंदर का सेल्फ टॉक चालू है, सेल्फ चैटर इज गोइंग ऑन, एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट व्हाट टू स्पीक लेटर। ओके, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल स्लाइड हियर टू कवर एम्पैथिक लिसनिंग नाउ। Let me just read the first point. So there are five types of listening, five types qualities of listening. First is ignoring, ignoring listening, ignoring type of listening. Second is pretending, pretending listening. Third is selective listening. Fourth is attentive listening, and fourth is emphatic. Fifth is emphatic listening. Ignoring में आप फिजिकली भी ध्यान नहीं दे रहे, so that is complete ignoration. तो आप सुन भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे उसकी तरफ। लेकिन pretending में you are just faking it. आप दिखा रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, बट अंदर कुछ नहीं सुन रहे, आप pretend कर रहे हैं। अटेंटिव मतलब पूरा सुन रहे हैं, सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव सुन रहे हैं। तो फिर एम्फेटिक और अटेंटिव में क्या डिफरेंस होगा? एंड एम्फेटिक लिसनिंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिसनिंग। अटेंटिव में आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, एम्फेटिक में आपका हार्ट भी इन्वॉल्व है, ये फर्क है। व्हेन योर हार्ट इज आल्सो इन्वॉल्व, यू आर एम्पैथाइजिंग विद द पर्सन, you are listening from her ground, from her or his space, that is emphatic listening. This is highest quality. इसमें आपका brain और heart दोनों listen कर रहे हैं। Emphatic means from empathy. Empathy मतलब सामने वाले को समझना, सुनना, उसकी बात को जानना, उसके प्रॉब्लम्स को समझना, उसके शूज में जाना, उसके दुख को अपना दुख लेवल पे समझना। लिसनिंग गेट्स इनसाइड द अदर पर्सन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके एंगल से देखना, उसके शूज में जाकर देख पाना। ठीक है, यू आर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड फोकस्ड ऑन रिसीविंग डीप कम्युनिकेशन। अनदर ह्यूमन सोल वर्ड यूज किया, देखो यहाँ पे। अब ये सोल आ गया, ब्रेन से आगे चले गए, हार्ट आ गया, सोल आ गया। सोल से सुन रहे हैं आप यहाँ पे, दैट इज एम्पैथिक लिसनिंग। दिल से सुन रहे हैं बोल। इट डेवलप्स ह्यूमन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ट्रेमेंडस डिपॉजिट इन द इमोशनल बैंक अकाउंट। तो एम्फेटिक लिसनिंग इज अ वेरी वेरी ग्रेट डिपॉजिट इन द इमोशनल बैंक अकाउंट। जब आप किसी को सुनते हैं और सिर्फ अटेंटिव नहीं है, आप पूरे दिल से सुन रहे हैं उसको, दैट इज एम्पैथी के साथ सुन रहे हैं, तो दिस इज अ ग्रेट ट्रेमेंडस बैंक अकाउंट deposit in the emotional bank account. Okay, so let's see now, go further into emphatic listening. Emphatic listening में क्या होता है ना, 4 stages होते हैं। तो 4 steps होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू बेसिकली मिमिक कंटेंट। तो मिमिक कंटेंट, रिफ्रेश कंटेंट, रिफ्लेक्ट कंटेंट, एंड फोर्थ इज रिफ्रेज एंड रिफ्लेक्ट टुगेदर। देखो, सामने वाले ने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी पूरी, तो आपने हाँ हाँ हूँ कर लिया, तो ये तो ठीक है, मिमिकिंग हो गया। लेकिन मिमिकिंग के बाद रिफ्रेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना, कोई देखो समझदार आदमी आपकी प्रॉब्लम सुनता है तो वो रिपीट करता है कि दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड, कि तुमको ये है, बी है, तुम्हें सी करना है, इज दिस ऑल राइट? तो वो बोलेगा हाँ आपने बराबर समझा है, या वो बोलेगा नहीं इसमें ऐसा नहीं है मेरा इंटेंशन, तो वो आपको फिर से बताएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेप वेर यू नॉट ओनली लिसन बट यू रिफ्रेज इट।
एम्पैथी में ये आता है कि आप सिर्फ मिमिक नहीं कर रहे हैं, फिर आप रिफ्रेज भी कर रहे हैं, दैट इज स्टेप 2। व्हाट इज थर्ड स्टेप? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप उस पर सोच रहे हो खुद, आप अपना दिमाग भी चला रहे हो उस पर। आप सामने वाले ने आपको एक सवाल पूछा, आपने सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, रिफ्रेज करवा लिया, नाउ यू आर रिफ्लेक्टिंग इन योर ओन ब्रेन टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्योंकि एम्पैथी है ना, यहाँ पे हार्ट इन्वॉल्व है, यहाँ पूरा जी जान से आप सुन रहे हैं, आप उसकी समस्या को बेस्ट देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। व्हाट इज फोर्थ स्टेज? रिफ्रेज एंड रिफ्लेक्ट टुगेदर। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेज को कंबाइन कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपने मिमिक कर लिया, रिफ्रेश करके समझ लिया, रिफ्लेक्शन करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा। अब जरूरी नहीं है ना वो सॉल्यूशन आपने जो सोचा वो फिट होगा उस पर्सन के लिए। तो फोर्थ स्टेज में आप क्या करते हैं? फिर से रिफ्रेश करते हैं। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग। नाउ लेट्स गो टू वन ऑफ द अदर कोई टॉपिक्स, दैट इज डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब। We all understand the importance of diagnosis before prescription in case of doctor relationship. Then why don't we understand it in terms of relationships? ठीक है, तो इसी क्वालिटी को, डायग्नोज बिफोर यू प्रेस्क्राइब क्वालिटी को, जब आप कम्युनिकेशन पे लगाते हैं, रिलेशनशिप्स पे लगाते हैं, देन इट बिकम्स दिस हैबिट, हैबिट 5। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ लेट मी रीड दिस पॉइंट। सीकिंग फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, डायग्नोज बिफोर योर प्रिस्क्रिप्शन इज बिफोर you hard prescribe or before you give a final conclusion to anyone, apply to understand. It means apply the emphatic communication. Okay. Point number 2, takes a great deal of security to go into a deep learning experience. आपको बहुत सारी सिक्योरिटी अपनी छोड़नी पड़ती है डीप लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। क्यों छोड़नी पड़ती है? बिकॉज आपका क्लोज रिलेशन है उस पर्सन के साथ। आप अगर सिर्फ सिक्योर होके क्लोज होके बैठोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। टेक्स टू कम आउट ऑफ योर ओन सिक्योर जोन, कंफर्ट जोन, टू हैव दिस काइंड ऑफ डीप लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके। पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस यू हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड। मार्क ऑफ ऑल ट्रू प्रोफेशनल्स। तो ये देखो, ये थर्ड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? तो इन्फ्लुएंस होना मतलब अपने आप को ओपन करना किसी के सामने। तो इन्फ्लुएंस पहले होना सीखो, जिसके लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी को तोड़ना पड़ेगा, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना पड़ेगा, कुछ लर्निंग करने के लिए, कुछ लिसनिंग करने के लिए, कुछ मेंटर्स के पास जाने के लिए। एंड देन एट अ टाइम वन पॉइंट विल कम व्हेन यू कैन बी एबल टू, यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिकॉज ऑफ योर स्किल्स एंड क्वालिटीज। ओके। 4 ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेस। तो ये हम जनरली ये रटी रटाई चीजें देते हैं, जिसमें ये 4 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं हमारे। जब कोई बात करता है, कोई एम्पैथिक कम्युनिकेशन करता है, कोई डीप कम्युनिकेशन हमारे साथ करता है, तो हम ये 4 तरह की चीजें करते हैं। वी इवैल्यूएट, वी प्रोब, वी एडवाइस एंड वी इंटरप्रेट। ठीक है, ये 4 स्टेजेस ऑफ योर ओन थिंकिंग आर गोइंग ऑन। दीज आर 4 काइंड्स ऑफ वेज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन डीपर। ये आपके ब्रेन की अपनी स्टेजेस चल रही है। ठीक है। वी इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब सामने वाले ने जो बताया आप उसको तोलते हैं अंदर माइंड में। देन वी प्रोब, प्रोब हम सबको पता है, प्रोब मतलब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उस पे एडवाइस, एडवाइस हम सबको पता है, हम एडवाइस देते हैं। तो ये एडवाइस कब दो? जब डायग्नोसिस हो जाएगा तब, लास्ट में दो। एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट इज क्लोज टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में आप उसका मतलब निकाल रहे हैं, इंटरप्रेट में आप अपने हिसाब से सोच रहे हो उसको कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये इसने जो कहा इसका मीनिंग क्या हो सकता है। So these are just 4 good things to understand. Okay. Now let's see what seek to be understood means. आप पहले सुन लिए सामने वाले को, seek first to understand and then to be understood. तो being understood का क्या वैल्यू है, कैसे होता है? Maturity is the balance between courage and consideration. Maturity is not recklessness. Recklessness वाला courage नहीं होता maturity में. We are looking for the courage that comes with consideration, which comes with understanding and knowledge. तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से maturity होता है. Who is mature? Who has courage and consideration. Okay. Next point. Seek to understand requires consideration. तो देखो, सामने वाले को सुनने के लिए क्या लगता है? कंसिडरेशन लगता है ना, आपको कंसिडर करना पड़ेगा उसकी बातें। एंड सीकिंग टू बी अंडरस्टूड रिक्वायर्स करेज। तो देखो, ये आज बिल्कुल ये फिट बैठ गया फॉर्मूला। हमने मैच्योरिटी का डेफिनेशन लास्ट टाइम सीखा था, करेज एंड कंसिडरेशन। तो करेज एंड कंसिडरेशन 2 क्वालिटी है जिनसे मिलकर मैच्योरिटी बनता है। बट टू अंडरस्टैंड अदर्स यू नीड टू बी कंसिडरेट। ओके। बट फॉर यू बीइंग अंडरस्टूड बाय अदर्स यू नीड करेज। व्हाई? Because you have to be honest, you have to be courageous to talk about yourself. Now there are 3 things in the Greek में ये आता है, ethos, pathos and logos. ये 3 थ्योरीज हैं ग्रीक साइंस में। एथोस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, पर्सनल क्रेडिबिलिटी। पैथोस का मतलब होता है एम्फेटिक लिसनिंग एंड लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। तो जो पैथोस एंड लोगोस मतलब हार्ट एंड ब्रेन, जैसे हमने अभी समझा था। आप हार्ट से सुन रहे हैं कि ब्रेन से सुन रहे हैं? ब्रेन इज लॉजिक, हार्ट इज एम्पैथी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग अदर्स। एथोस इज योर ओन ओनरशिप. This is seek to be understood. Okay. So with this, we are nearing the end of the session. With this, just but one last slide. This is how to apply. अभी जिन लोगों को ये जिस पे अच्छा लगा या जिनको ये और ज्यादा इस पे काम करना है, some of these points are given here. I will just read them. So I'll just read the points and then you can work on these points in your own of time to take this topic deeper into your life. Select a relationship where emotional bank account is red. ठीक है। अभी ये हमने लास्ट टाइम भी इस तरह का एक एक्सरसाइज हमने पढ़ा था कि इमोशनल बैंक अकाउंट पे आपको काम करना है, तो आप किसी एक रिलेशनशिप में इसको बिल्ड करो जहां पे आपका इमोशनल बैलेंस रेड में जा रहा है, विड्रॉल ज्यादा हो रहे हैं, डिपॉजिट कम हो रहे हैं, राइट। तो
इस केस में अब उस पे एम्पैथी लगाओ। देखो, एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम द अदर पर्सन साइड। तो अगर आप रेड में जा रहा है आपका अकाउंट, तो आप विड्रॉल कर रहे हो, सामने वाले को किस तरह की फीलिंग होगी, ये थोड़ा सा एम्पैथिक लिसनिंग करके देखो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइम यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच पीपल कम्युनिकेट, कवर योर ईयर्स फॉर अ व्हाइल एंड ओनली वॉच। तो ये बॉडी लैंग्वेज सीखनी है किसी को, तो ये बहुत बहुत पावरफुल टिप है। देखो, टीवी चलाओ, आवाज बंद कर दो। टीवी चलाओ, आवाज म्यूट कर दो, और फिर समझो। इमीडिएटली समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 आपकी मास्टरी बढ़ेगी। So you will become a better listener. You will become a better observer. You will become a master of learning, reading the body language of the other person. Then base your next presentation on empathy. तो किसी से नेक्स्ट टाइम बात करोगे, प्रेजेंट करोगे, या प्रेजेंट नहीं भी करोगे, तो किसी से टॉपिक पे गहरी कोई बात कर रहे हो, तो एम्पैथिक कम्युनिकेशन को अप्लाई करो वहां पे। ओके। फोर्थ पॉइंट इज कैच योर सेल्फ रिस्पॉन्डिंग इन एनी ऑफ द फोर ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेज। तो अगर कहीं पे कोई बात कर रहे हो, तो अपने आप को पकड़ो रंगे हाथों के, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई प्रोबिंग, am I interpreting, am I evaluating? Okay, okay, with this we would end the session.